Hello students, welcome back. In this practical we will try to apply what if analysis on a given scenario. So first of all, let us understand what is what if analysis. So in a simple term, what if analysis is an option that is available in your Excel sheet. There in under data tab you can just find this what if analysis ka option. Now this analysis help us to compare different scenarios. So to understand this what if analysis or to implement this what if analysis, let us go through this case study. In this case study, it has been mentioned that there are total 100 books in the storage, and if you are selling some percentage of the book with the highest price of rupees 50 and you are selling some percentage of the book with the lowest price of rupees 20. For example, if you decide to sell 60% of the book with the highest price, that is for 50 rupees, and remaining 40% of the book with the lowest price, that is of 20 rupees, then the total amount which you will make after selling all the 100 books will be 3800, which indirectly is equals to 60 multiplied by 50, that is 60 books into 50 rupees plus 40 books into 20 rupees, which will give you 3800 rupees total amount. Now you need to assume another scenario wherein you are assuming that you will be selling 70% of the book with the highest price and remaining 30% of the book with the lowest price. Then in that scenario, what will be the total amount you are going to make? Okay, that is the second scenario. Another thing, you can consider a third scenario as of 80%, where you are selling 80% of the book for 50 rupees and remaining 20% of the book for 20 rupees. Okay, like this way different scenarios are given for 70%, 80%, 90% and even 100%. We need to apply what if analysis for each and every scenario and compare the final amount that is being made after selling all the 100 books. So now let's get start implementing the practical. So this practical we need to do it in Excel sheet. So for that we need to first open our Microsoft Excel, whichever version, whether you are working with Excel 2007 or 10 or 13, anything will do. You just need to open a blank book, blank sheet. Now here you can take any of the cell, and in that cell you need to first specify the data that is been given in the case study. So the first thing that has been mentioned in the case study is total number of books. So there are 100 books are there in total. In the case study they had also mentioned that you are selling the books, some portion of the book with the highest price, that is for 50 rupees. So the highest price is 50 rupees and lowest price with which you will sell the book is 20 rupees. Lowest price is 20 rupees. This much data is been given in the case study. Now there are different scenarios which you need to consider. So let's say the first scenario which I consider, which is already given in the case study, is of 60%. So it basically means that if you decide to sell 60% of the book with highest price, then what is the total amount you are going to make? So this cell I consider it for total amount. Total amount. Okay, so this 100 book ka 60% is basically 60 books. So 60 books I will be selling it for 50 rupees and remaining 40 books I will be selling it for 20 rupees. So in total, what is the total amount you will make after selling all the 100 books? That will be equal to this cell, that is 60 multiplied by once again this cell multiply by 50, that is the price, plus this cell, that is 40 wala cell, multiply by 20, and you will get the answer as 3800. This is quantity of book and here is the price. Okay, so if you decide
to sell 60% of the book with the highest price and remaining 40% of the book with the lowest price. So the total amount you will make is 3,800. If we go ahead and if we try to change the scenario from 60 to 70%, तो जब उसको 60 से 70% बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ बुक और द क्वांटिटी ऑफ बुक विल गेट चेंज. तो 100 का 70% विल बिकम 70 एंड remaining is 30. So in that case you will make total amount, total profit you will make or total amount you will make is 4,100. So now every time you can see we are manually changing this from 70 to 80%. अगर हम लोग करते हैं तो वापस से हमें यहाँ पे मैनुअली 80 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे खुद से ही कैलकुलेट करके 20 देना पड़ेगा एंड वी आर गेटिंग द फाइनल अमाउंट ऑटोमेटिकली. Now what we need to do, we need to do this with the help of some formula. So here in the case of lower price, what we can do, we can just add a formula and say this cell is equals to total number of book का cell minus previous cell 80 वाला cell, highest price वाला. You got 20. Now this time the 20 which we are getting with the help of some formula. Okay, so once again this cell is equals to 100 वाला cell minus हाईएस्ट प्राइस वाला सेल. यू गॉट 20. सो नाउ लोअर प्राइस का फॉर्मूला हो चुका है. अब हाईएस्ट प्राइस वाले कॉलम में रो में भी हमें फॉर्मूला डालना है. ये जो 80 हमने मैनुअली लिखा है, 80 60 70 जो हम लोग मैनुअली लिख रहे हैं वो भी अब हमें फॉर्मूले से आना चाहिए. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली वी विल सिंपली से दिस सेल इज इक्वल्स टू, ये जो 80% है 80% वाला सेल मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ नथिंग बट इनडायरेक्टली इट विल बिकम 80. तो नाउ जो ये 80 आ रहा है ये अब एक फॉर्मूले से आ रहा है. ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या चेंज हो रहा है पूरे आउटपुट में. सो जब जैसे ही मैं सिनेरियो चेंज करती हूँ 80 से लेट्स से मैंने 60% का सिनेरियो किया तो ऑटोमेटिकली आप देखो मुझे यहाँ पे 60% आ जा रहा है, 60 बुक्स आ रहे हैं, 40 बुक्स आ रहे हैं, 3,800 आ रहा है. फिर से अगर मैं चाहूँ तो सिनेरियो यहाँ से 60% को चेंज करके लेट्स से आई विल गिव 90%. सो 90% के केस में हाईएस्ट प्राइस 90 बुक्स को मैं 50 रुपीज़ में बेचूंगी एंड 10 बुक्स को मैं 20 रुपीज़ में बेचूंगी. टोटल मुझे 4,700 प्रॉफिट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा. सो दिस इज़ नाउ how I had used the formula. I had used formula 3 places. The first place is at highest price वाले में, lowest price वाले में and total amount में. अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिनेरियो अलग अलग सिनेरियोज को देखने के लिए हमें यहाँ मैनुअली इसको चेंज करना पड़ेगा. वी आर चेंजिंग दिस परसेंटेज, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को चेंज कर रहे हैं और फिर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं. बट केस स्टडी में अगर आप देखोगे तो केस स्टडी में उन्होंने बताया है कि यू कैन यूज़ सिनेरियो मैनेजर टू क्रिएट दीज सिनेरियोज. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ को हम लोग सिनेरियो मैनेजर के थ्रू करेंगे. अब हम लोग सेम चीज़ को सिनेरियो मैनेजर के थ्रू करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू गो इन दिस डेटा टैब. यहाँ पे हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस है. व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमारे पास सिनेरियो मैनेजर है. सिनेरियो मैनेजर के अंदर इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम सिनेरियो मैनेजर के अंदर कुछ कंटेंट नहीं देगा, तो हमें यहाँ पे सिनेरियोज को ऐड करना होता है. तो हम लोग टोटल 5 सिनेरियोज को ऐड करेंगे. एक 60% के लिए, 70% के लिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है. 60% के लिए हम लोग एक सिनेरियो को ऐड करेंगे. देन 60%, 70%, 80%, 90 एंड 100, ये 5 सिनेरियोज को हम लोग क्या करेंगे, हमें ऐड करना है. अब 5 सिनेरियोज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये ऐड बटन पे क्लिक करेंगे. हम लोग पहले सिनेरियो का नाम देंगे 60%. तो दिस इज द सिनेरियो फॉर 60%. अब सेकेंड कॉलम, सेकेंड एंट्री, इट इज़ आस्किंग फॉर चेंजिंग सेल. तो देखो बार बार हमें ये वाले सेल को चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज़ 80%, 90% वाला सेल. तो यहाँ पे एक बटन है, इसे हम लोग क्लिक करेंगे. यहाँ पे मैं ये सेल को क्लिक कर दूंगी कि दिस इज़ माई चेंजिंग सेल एंड आई विल अगेन क्लिक ऑन दिस बटन एंड नाउ आई विल से ओके. अभी 80% का मतलब होता है 0.8. इफ़ यू से 80 डिवाइड बाय 100 तो आपको 0.8 आंसर आएगा. तो 80% का वैल्यू होता है 0.8. तो आपको यहाँ पे 0.8 लिख देना है और ओके कर देना है. ये सॉरी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिनेरियोज को ऐड करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ऐड बटन पे क्लिक करूँगी. मैंने सिनेरियो का नाम दे दिया. मेरे सिनेरियो का नाम है 60%. तो ये 60% का सिनेरियो है.
चेंजिंग सेल कौन सा है, ये वाला सेल है जो मेरा बार बार चेंज हो रहा है, 60 से 70% होगा, 70 से 80% होगा। तो मैं ये बटन पे क्लिक करके मैं ये सेल का नाम देती हूँ, इसका नाम है H7। आई अगेन क्लिक ऑन दिस बटन एंड आई से ओके। अभी 60% का मतलब होता है 60 डिवाइड बाय 100। जब आप 60 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको उसका वैल्यू आएगा 0.6। तो यहाँ पे हमें उसका वैल्यू लिखना है 0.6 और आप यू से ओके। तो ये आपका 60% का सिनेरियो बन गया। अब जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके शो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखो यहाँ पे 60 हो जा रहा है, यहाँ पे 60-40 और यहाँ पे आपको अमाउंट आ जा रहा है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, 70%, 80%, 90% और 100% का सिनेरियो ऐड करना है। सो वापस से मैं ऐड बटन पे क्लिक करती हूँ। नाउ आई विल से 70%, 70%। चेंजिंग सेल वापस से मेरा यही वाला होगा, तो मैं चेंजिंग सेल के लिए यहाँ पे बटन पे क्लिक करती हूँ। मैं ये सेल को क्लिक करूँगी H7 एंड आई विल से ओके। 70% का मतलब होता है 70 डिवाइड बाय 100, तो इट विल गिव यू द वैल्यू एज, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 0.7। तो 0.7 एंड ओके, ये 70% आ गया। अब देखो अगर आप 60% का भी अभी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, आप 70 को सेलेक्ट करके शो करो तो देखो यहाँ पे 70% हो जा रहा है, 70, 30 एंड 4100। इसी तरीके से अब हम लोग 80% का भी बना देंगे, 80%। चेंजिंग सेल अभी भी यहाँ पे मुझे H7 ही दिख रहा है। सो अगर नहीं चेंज करोगे तो भी चलेगा क्योंकि बाय वो H7 ही ले रहा है। ओके करके 80% के लिए आपको 8.8 करना है एंड ओके। सेम वे अब 90% के लिए भी आपको करना है। H7 चेंजिंग सेल है, ओके करके 90% के लिए 0.9 करना है एंड से ओके। एंड लास्ट जो हमें करना है वो है 100%। 100% चेंजिंग सेल फिर से वो H7 ही होगा। 100% के लिए इट विल बी 100 डिवाइड बाय 100, तो हमें आंसर आएगा 1। तो हमें सिर्फ वैल्यू देना है 1 एंड ओके। तो ये हमारे पांचों सिनेरियोज बन गए हैं। अब आप किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना है तो आप यहाँ सिनेरियो मैनेजर से सिनेरियो सेलेक्ट करो एंड से शो। 80% के लिए देखो 80-20 एंड 4400। 100% के लिए 100-0 5000 और यहाँ पे भी हमारा अकॉर्डिंगली सिनेरियो चेंज हो रहा है। 90% के लिए ये। तो इस तरीके से हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस को यूज़ करके वैल्यूज़ को, किसी भी डेटा के वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। So that's it in this practical. See you in the next video. Thank you so much.